Hello students, good morning all of you. Students, as all of you know that your chapter 6 is going on, and in previous video I have explained all the concept of chapter 6, that is algebraic expression, types of algebraic expression on the basis of terms, and as well as the concept of degree of the polynomial and types of algebraic expression, like if algebraic expression have one term, then it is called monomial. So in the same way, if the algebraic expression has two terms, then it is called binomial, and three terms it is called trinomial, and more than three terms is called multinomial or polynomial. And students, last of question also you have to solve in this exercise which is given in chapter 6. So today I will solve some question which is based on the concept of algebraic expression. So let's start. Question number in exercise 6.1, question number 6 is identify the number of the terms in the following algebraic expression. So student, you are all know about how can we identify the term. Student, I have explained in previous video that in algebraic expression the operators plus and minus separates the algebraic expression into terms, and these terms are called separates into parts. Student, the operators in algebraic expression, that is plus and minus, these operators separates algebraic expression into parts, and these parts are called terms. Okay, so here we have to identify the number of terms. Okay, so number of terms is in this algebraic expression has 2. Why I am saying two terms? Because this operator plus separates this algebraic expression into two parts. So here this is first part and here this is second part. So that's why in this algebraic expression has 2 terms. Okay, so number of terms is equal to number of terms is equal to 2. So in the same way, in question number B, number of terms 10 minus 3x minus y square, number of terms is equal to 3, because students here 10 is the first term, minus 3x is the second term, and y square is the third term. So here in part C, 2a plus 3b minus 9, so it is also have 3 terms. In the same way, in E part 5y cube minus 6x square y plus 7xy square and plus 8xy, here in number of terms is equal to, अच्छा देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म, दिस इज 5y क्यूब इज द फर्स्ट टर्म, 6x square y is the second term, 7xy square is the third term, and 8y is the fourth term. So in this question has number of terms is 4. Now we have to move on the second question. Classify the following expression as monomial, binomial, trinomial and polynomial. बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, चाहे आप कहिए चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, अगर 1 टर्म होगा किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं.
अगर 2 टर्म होगा तो उसे बायनॉमियल कहते हैं, 3 टर्म होगा तो ट्राइनॉमियल कहते हैं, और मोर देन 3 टर्म्स होगा तो बच्चों 2 नेम्स होते हैं उसके, चाहे आप पॉलिनॉमियल कहिए चाहे मल्टीनॉमियल कहिए, ठीक है। तो 2 नेम्स हैं, यहाँ पर आपको पॉलिनॉमियल कहा गया है तो पॉलिनॉमियल कहेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 2x³ बच्चों देखिए इसमें कुल कितने टर्म दिख रहे हैं, 2x³, ओनली 1 टर्म, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसे बी पार्ट देखिए बच्चों, 7a² प्लस 9b², इट हैज़ 2 टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड बायनॉमियल। ऐसे बच्चों सी पार्ट देखिए, 2x² प्लस 3xy एंड प्लस 7, इट इज कॉल्ड, बच्चों यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो हम इसको कहेंगे ट्राइनॉमियल। क्या कहेंगे हम, ट्राइनॉमियल। अब देखिए बच्चों डी पार्ट देखिए इसका, 2a² प्लस 3ab² प्लस 4a² एंड प्लस 7। बच्चों देखिए इसमें कितने टर्म है, काउंट करिए, 2a²b² फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3ab² is the second term, 4a² is the third term, and 7 is the fourth term. So here in this algebraic expression has more than 3 terms, 3 से ज़्यादा है ना बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, polynomial. This expression is called polynomial. I hope you are all understand how can we write the name of the polynomial, or you may say that the name of the algebraic expression on the basis of term. बच्चों पहले काउंट करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है, then after you have to write the name according to their terms. टर्म के आधार पर आपको नेम लिखने हैं, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बायनॉमियल, 3 टर्म्स ट्राइनॉमियल, और मोर देन 3 टर्म्स को हम कहेंगे पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी में लिखने के लिए। नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों किसी टर्म में आपको पता है टर्म में क्या होता है, लिटरल टर्म्स होते हैं, और लिटरल टर्म्स में या हम ये भी कह सकते हैं लिटरल फैक्टर होते हैं, और उन फैक्टर्स को हमें अलग अलग करके लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, a+5, अब इसमें बच्चों देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें कितने टर्म है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स क्यों है, देखिए a फर्स्ट टर्म एंड 5 इज द सेकंड टर्म। तो यहाँ पर बच्चों इसमें हम टर्म्स जो लिखेंगे, देखिए इसमें बच्चों टर्म a के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए टर्म a के लिए फैक्टर जो हो जाएगा बच्चों, इस तरह भी बना सकते हैं इसको, देखिए ऐसे बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। टर्म a के लिए फैक्टर क्या होगा बच्चों, एक तो a हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, और टर्म 5 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 फैक्टर हो जाएंगे ना, 5 और 1, क्योंकि आपको मालूम है a1 क्या होता है बच्चों, 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है बच्चों, सभी नंबर का फैक्टर होता है, सभी नंबर का फैक्टर होता है, इसीलिए 1 को
लिखा गया है कि 1 हम a के लिए भी 1 लिख सकते हैं और 5 के लिए भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए बी पार्ट इसका क्या लिखा हुआ है, b-5। ठीक है, अब इसमें देखिए टर्म इसमें कौन कौन सा है बच्चों, एक b है और एक 5 है, तो b के लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा, b और 1 हो जाएगा। और 5 के लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा, टर्म 5 के लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। ऐसे आप c वाला पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर c 2 + a + a²। ठीक है, तो देखिए बच्चों 3 इसमें टर्म है बच्चों, 3 टर्म्स हैं, 2a + a², 2 + a + a², देयर आर नंबर ऑफ टर्म इज 3। सो फॉर टर्म 2 के लिए बच्चों फैक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 और 1। टर्म a के लिए क्या कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा बच्चों, टर्म a के लिए फैक्टर आप लिखेंगे a और 1, और टर्म a² के लिए बच्चों कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा। देखिए a² लिखा हुआ है, a² का मतलब बच्चों 2 टाइम्स a, क्या हो जाएगा बच्चों, a² का मतलब होगा बच्चों a × a, तो इसमें 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, a और 1। ठीक है, ऐसे d पार्ट देखिए इसका, x² - y²। देखिए बच्चों नंबर ऑफ कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म्स हैं, x² - y²। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, टर्म x² के लिए कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, 3 फैक्टर हो जाएंगे ना। देखिए x² का मतलब होता है बच्चों x × x, तो 3 फैक्टर्स, x² को हम लिख सकते हैं x × 1 लिख सकते हैं, तो x² आएगा, तो x यहाँ पे हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें देखिए टर्म y² के लिए क्या होगा बच्चों, y और 1। सो स्टूडेंट यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट before watching these steps. Okay, so student please pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now we are moving our next question, question number 4, that is, student you have to identify the न्यूमेरल कॉफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों इसमें आपको कॉफिशिएंट बताना है। कॉफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जैसे लिखा हुआ है 4x² + 5y²। अब ध्यान से देखना, जो लिटरल टर्म होता है ना बच्चों, लिटरल टर्म का मतलब जो वेरिएबल वाला टर्म होता है उससे कनेक्ट जो फैक्टर होता है, वही वो फैक्टर जो होगा बच्चों इस लिटरल टर्म का क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम कहें कि x² का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 4 और y² का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों 5, तो ये लिटरल टर्म से जो कांस्टेंट अटैच होता है, जुड़ा होता है, वही उस लिटरल टर्म का फैक्टर होता है। लिटरल टर्म्स का मतलब बच्चों होता है वेरिएबल। क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर भी वही हम लिखेंगे, न्यूमेरल कॉफिशिएंट लिखना। न्यूमेरल कॉफिशिएंट का मतलब बच्चों होता है नंबर को लिखना। क्या लिखना है, नंबर को लिखना है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, a + 7 ab एंड + 9b²। ठीक है, तो बच्चों देखिए a के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना। जब किसी लिटरल टर्म्स का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिटरल टर्म्स का मतलब होता है बच्चों वेरिएबल। और वेरिएबल आप जानते हैं क्या होता है, अ क्वांटिटी व्हिच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू इट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो उसे लिटरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लिटरल टर्म्स।
और वेरिएबल के लिए हम ए से जेड तक का अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं। तो देखिए जो ए के आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है आपको, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों ए का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और ए बी का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 7 हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर न्यूमेरल कोएफिशिएंट्स आर, देखिए न्यूमेरल कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, ए का कोएफिशिएंट बच्चों यहाँ पे कोई डिजिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 1। ए बी का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों 7, और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 9। तो यही इसका सलूशन होगा। बी पार्ट देखिए 3x² प्लस वाई, यहाँ पर देखिए बच्चों हियर न्यूमेरल कोएफिशिएंट आर, बच्चों देखिए x² का न्यूमेरल नंबर वाला कोएफिशिएंट देखना है तो 3 हो जाएगा, और बच्चों y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है y, 3x² प्लस वाई लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो x² का कोएफिशिएंट तो 3 हो गया, लेकिन y के आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, कोई डिजिट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, जब कोई डिजिट नहीं, देखिए जैसे 3 दिखा, डिजिट दिख रहा है तो हमने 3 लिखा, लेकिन y के आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, y के आगे आपको कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर हम ऐसे कंडीशन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट इसका x² y² प्लस 9xy, हियर न्यूमेरल कोएफिशिएंट आर, बच्चों देखिए x² y² लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई डिजिट आपको दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ x² y² लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या मान लेंगे बच्चों 1 मान लेंगे। और x y के आगे कौन सा डिजिट दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो हम उसके आगे क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे, तो यही इसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डी पार्ट देखिए 2a² प्लस 4b, तो ये बहुत ही आसान है, हियर न्यूमेरल कोएफिशिएंट्स आर, बच्चों देखिए a² के आगे क्या लिखा हुआ है 2, और b के आगे कौन सा डिजिट लिखा है 4, तो यही इसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट हो जाएगा। यही समझ में आया बच्चों, दिस इज द आंसर of all these question, okay. So students, before moving our next question, please pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये वीडियो को पॉज कर दीजिए, तब लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। Now students, we are moving some another question of exercise 6.1. So in this question you have to identify the like terms and unlike terms। बच्चों बहुत ही easy question है। Like term means if any terms have same literal factors it is called like term। बच्चों जब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म में सेम लिटरल फैक्टर आते हैं, लिटरल फैक्टर का मतलब बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिटरल फैक्टर का मतलब होता है सेम वेरिएबल, ठीक है। सेम वेरिएबल आते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7xy प्लस 9xy माइनस 1/2xy। देखिए xy सब जगह xy आ रहा है ना, लिटरल फैक्टर सेम है, तो ये सभी क्या है बच्चों लाइक टर्म है। और जैसे मान लीजिए लिखा है 4z प्लस 4k माइनस 7y² प्लस 7x। देखिए बच्चों यहाँ z आ रहा है, यहाँ k आ रहा है, यहाँ y² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, ये सभी अलग अलग हैं लिटरल टर्म, तो इसे हम बोलेंगे अनलाइक टर्म, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक बार आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के लिटरल फैक्टर आ रहे हैं, बस आपको लिटरल फैक्टर देखना है, आपको कोएफिशिएंट नहीं देखना है।
बच्चों डिजिट नहीं देखना है, सिर्फ लिटरल फैक्टर देखने हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें है 5th A पार्ट इज x स्क्वायर वाई कॉमा वाई स्क्वायर एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई, नहीं एक्स एंड एक्स वाई साथ में है, फिर कॉमा है 12x स्क्वायर कॉमा 13y स्क्वायर कॉमा 7x स्क्वायर वाई एंड 9y स्क्वायर एक्स कॉमा 10xy एंड कॉमा एक्स स्क्वायर एंड कॉमा वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब इसमें लाइक टर्म्स देखिए, लाइक टर्म्स को कैसे लिखेंगे हम। लाइक टर्म्स आर, देखिए लाइक टर्म्स का मतलब मैंने अभी बताया, सिर्फ आपको लिटरल फैक्टर है वो सेम होने चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है और कहीं आपको एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, ये देखिए दिखा कि नहीं दिखा। अब आप सोच रहे होंगे इसकी यहाँ पे 7 लिखा है तब तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई और 7x स्क्वायर वाई लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों ये देखना है कि ये सेम होना चाहिए, लिटरल फैक्टर सेम होना चाहिए। ये क्या है बच्चों, लिटरल फैक्टर है और इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरल कोफिशिएंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लिटरल फैक्टर यहाँ पर क्या है बच्चों, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स में आपको एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है। तो ये हो गया आपका लाइक टर्म 7x स्क्वायर वाई, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, देखिए वाई स्क्वायर एक्स यहाँ पे है और वाई स्क्वायर एक्स कहीं पर दिख रहा है, ये देखिए ये दिखा है 9y स्क्वायर एक्स, और कहीं पे नहीं दिखा। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई आप लिखें इस तरह से, और कहीं पे एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई सिर्फ देखना है, ओनली एक्स वाई। ये देखिए 10xy लिखा हुआ है, तो ये होगा लिटरल टर्म। और देखिए 12x स्क्वायर, कहीं आपको 12x स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर। देखिए 12x स्क्वायर यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हो गया लाइक टर्म। नेक्स्ट देखिए 13y स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो गया लाइक टर्म। तो कुल कितने टर्म है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया। देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए। ऐसे आपका बी पार्ट कैसे लिखेंगे, देखिए बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 8mn 7n स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर n -12mn -8m स्क्वायर n स्क्वायर -10m स्क्वायर 1n। अब देखिए बच्चों इसमें भी आपको यहाँ पर कामा नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है बच्चों -8m स्क्वायर n स्क्वायर -10m स्क्वायर n। ठीक है, तो अब इसमें लाइक टर्म्स लिखेंगे हम, लाइक टर्म्स आर। देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, mn कहीं पर दिख रहा है आपको, ये देखिए 2 टाइम्स दिख रहा है आपको mn, 2 जगह पे। एक तो आपका 8mn हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -12mn, तो ये हो गया फर्स्ट लाइक टर्म। अब देखिए n स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ पर m स्क्वायर n स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर n स्क्वायर m स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर पहले n स्क्वायर बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको पता है कि अगर 1 × 3, देखिए कोई भी नंबर है 3 × 2 यहाँ पे मान लीजिए लिखा है और 2 × 3 लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा,
दोनों कंडीशन में 6 आ रहा है ना, क्योंकि n पहले m बाद में, इधर m पहले n बाद में, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप ऑर्डर अलग अलग कर दें लेकिन रिजल्ट तो सेम आता है। इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको आप पहले लिख दीजिए n स्क्वायर m स्क्वायर। एक तो ये होगा लाइक टर्म और एक ये होगा सेम लिटरल फैक्टर मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा बच्चों, m स्क्वायर n, और अच्छा इसमें एक्चुअली एक ये अलग अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है बच्चों। यहाँ पर ये एक टर्म है क्योंकि हम कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक तो आपका ये दोनों हो गया लाइक टर्म, और यहाँ पर ये तीनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अनलाइक टर्म्स आर, देखिए अनलाइक टर्म क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर n स्क्वायर m स्क्वायर फिर कॉमा m स्क्वायर n लिखा हुआ है, और इसमें ये कॉमा नहीं है, ये माइनस लगा हुआ है। एक मिनट आंसर जरा चेक करता हूँ कि कॉमा लगा है कि नहीं कॉमा लगा है, देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, लाइक टर्म्स 8mn माइनस 12mn 7n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर m स्क्वायर। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है लेकिन कॉमा छूट गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यही हो जाएगा, लाइक टर्म्स यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ये इस तरह से कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि अभी इसमें और टर्म मिल रहे हैं। इसी तरह से 7m स्क्वायर m स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों 8m स्क्वायर n स्क्वायर, एंड थर्ड लाइक टर्म इज m स्क्वायर n कॉमा माइनस 10m स्क्वायर n। देखिए बच्चों m स्क्वायर n लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस 10m स्क्वायर n, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बस खाली आपको ये देखना है m स्क्वायर n देखना है, माइनस 10 से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द थर्ड लाइक टर्म्स, दिस इज द थर्ड लाइक टर्म्स, ओके। So here let me check the answer is matching or not. 8mn minus 12mn, yes it is correct. 7n square m square minus 8m n square m square, m square n minus 10 m square n. Okay, so students, I hope you are all understand today's the numerical problem of exercise 6.1. So students, I will solve the remaining question of this exercise in next video. So प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। बच्चों 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट कर दिया है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, ओके। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको लिखने के बाद जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।